السلام علیکم۔ پروگرام میرا پاکستان کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید ناظرین۔ میں ہوں آپ کی میزبان راجیہ منیر۔ ملک بھر سے اہم خبریں شامل کرتے ہیں اور آپ کو سب سے پہلے اپڈیٹ دیتے ہیں ننکانہ صاحب سے، جہاں حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کو براہ راست ریلیف کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت ضلع کونسل ہال میں ریونیو عوامی سروسز کی فراہمی جاری۔ ڈپٹی کمشنر اور دیگر افسران نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو موقع پر احکامات جاری کیے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ، سب رجسٹرار ریونیو اسٹاف اور سائلین کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ سائلین کے زیادہ تر مسائل قبضہ واگزار، وراثتی ونڈا، خد برادری، راستے کی بحالی، سیوریج، اراضی انتقال سے متعلق تھے۔ کھلی کچہری میں براہ راست ریونیو اسٹاف سے موقف بھی لیا گیا۔ عوامی خدمت سروسز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا انقلابی اقدام ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ننکانہ محمد تسلیم اختر راؤ نے کہا، افسران کی موجودگی میں ایک چھت تلے عوامی مسائل نپٹا رہے ہیں، قانون کے تحت لوگوں کو درینہ مسائل پر ریلیف دے رہے ہیں، ٹائم لمٹ کی درخواستوں پر تاخیری غربے برداشت نہیں ہوں گے۔ ترجمان ضلع انتظامیہ کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر ہر مہینے کے پہلے 2 دنوں میں کھلی کچہری منعقد کی جاتی ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹر کے علاوہ تحصیلوں میں بھی کھلی کچہریاں منعقد کی گئی ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹھٹہ سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر زہیب شیخ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ انسانی حقوق حکومت سندھ کے ڈپٹی ڈائریکٹر PMS آفیسر محمد طارق کاکا کی صدارت میں انسانی حقوق کی ہونے والی خلاف ورزیوں کے خلاف شکایات سیل متعلق حیدرآباد ڈویژن کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ تفصیلات کے مطابق اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر معصوم محسیر، انچارج ٹھٹہ سجاول الطاف حسین تنیو، عبدالرزاق حاجانو، شاکر چانڈیو، عبدالحمید سومرو، محمد علی ناصر خان ساحر و دیگر ڈسٹرکٹ کے انچارج شکایات سیل نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں محکمہ انسانی حقوق حکومت سندھ کی جانب سے حیدرآباد ڈویژن کے مختلف ڈسٹرکٹ میں قائم محکمہ انسانی حقوق حکومت سندھ کی جانب سے قائم کردہ شکایات سیل کی 1 سال کی کارکردگی اور انسانی حقوق کے ہونے والی خلاف ورزیوں درپیش مسائل، جس میں پانی، صحت، تعلیم، امن و امان، سیکیورٹی کے متعلق تفصیلی بات چیت کی گئی۔ اس اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر محمد طارق کاکا نے کہا کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر سندھ راج ویر سنگھ، سیکریٹری محکمہ انسانی حقوق تحسین فاطمہ، ڈائریکٹر ہیومن رائٹس سندھ آغا فخر حسین کے سخت احکامات ہیں کہ انسانی حقوق کی ہونے والی خلاف ورزیوں پر شکایات سیل کی جانب سے فوری ایکشن لیا جائے۔ سال 2024 میں مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں کردار ادا کرنے والے اداروں اور ہیروز کی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف سمندری ایوارڈ سرمنی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر سمندری اور DSP سرکل سمندری نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں مرزا آصف کی اس رپورٹ میں۔ سال 2024 کے اختتام پر تحصیل سمندری مختلف شعبہ جات میں اپنا اہم کردار ادا کرنے والے اداروں اور ہیروز کی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف سمندری ایوارڈ سرمنی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تعلیمی، ادبی، صحافتی اور فلاحی اداروں اور کھیل کے میدانوں میں سمندری کا نام پوری دنیا میں روشن کرنے والے ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں تحصیل بھر سے تمام شعبہ زندگی سے جڑے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ تقریب کا مقصد ایسے ہیروز کی حوصلہ افزائی کرنا جو اس شہر اور ملک کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ کہ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں اپنی پرفارمنس ٹیم کا، جس میں جناب میاں نویس صاحب، مطاع رسول صاحب اور مدثر مجید گجر صاحب، اور انہوں نے دن رات محنت کر سمندری میں ٹیلنٹ تھا، چھپا ہوا ٹیلنٹ تھا، آج انہوں نے ان کو اجاگر کیا، جس میں سپورٹس میں، ایجوکیشن میں، ویلفیئر میں، صحافت میں تمام لوگوں کو اپریشیٹ کیا اور جسٹس کی بنیاد پر تمام کو ایوارڈ دیے گئے۔ میرا خیال ہے کہ آج فیس آف سمندری جتنے بھی چہرے تھے، آج ان کو سب کو اپریشیٹ کیا گیا، جس میں ہمارے اداروں کے سربراہ، DSP سمندری، اسسٹنٹ کمشنر سمندری اور ہر مکتبہ فکر کے، مطلب جسٹس کا یہ نظام تھا کہ ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو اپریشیٹ کیا گیا، بچوں کو سرٹیفکیٹ دیے گئے، ایوارڈ دیا گیا، جس میں مطلب کوئی بھی ایسا مکتبہ فکر نہیں تھا جس کو ہم نے اپریشیٹ نہیں کیا گیا۔ اور ہم نے آج سب سے مین چیز جو ہماری ٹیم تھی، انہوں نے تمام مکتبہ فکر کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنی صحافت کا
اور تمام جتنی بھی سمندری کی ماشاءاللہ صحافی برادری تھی انہوں نے آ کر اس پروگرام کو چار چاند بھی لگائے، اور میں اسپیشلی شکر گزار ہوں سٹی نیوز کا، جنہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہماری کوریج کی، اور مطلب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی بہت ترقی دے، اور ہم ان کی ٹیم کا بھی حصہ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ مل کر اور کام کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ یہ تیسرا بڑا پروگرام تھا، الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ نیکسٹ ٹائم بھی جو اگلا پروگرام ہوگا اس میں اور زیادہ بہتری کی گنجائش، کیونکہ بہتری کی گنجائش ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں پہ جتنے بھی نوجوان ہیں، اسکولوں کے مدارس کے بچے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ دوسرے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی پرائڈ آف سمندری ایوارڈ کے لیے سلیکٹ ہوں۔ تو اس کے لیے ہماری پوری ٹیم پروفیسر کا سالانہ تیسری جو ہے اس کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ہم نے تعلیم، ویلفیئر اور اس کے علاوہ سمندری کے وہ ہیروز جنہوں نے اپنی سوسائٹی میں مختلف گراں قدر خدمات سر انجام دی، ان کو ہم نے یہاں پہ آج پرائڈ آف پرفارمنس کے حوالے سے ایوارڈز جو دیے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو، کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا ہو، اور بہت سارے لوگوں کے لیے ایک جو ہے انسپائریشن ہے، سورس آف موٹیویشن ہے، اس سے بہت لوگوں میں لگن پیدا ہوگی اور لوگ بھی زیادہ اور کام کریں گے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے یہاں پہلے تحصیل سمندری میں ہوا کرتا تھا، اور نیکسٹ ٹائم اگلے سال ہم جو ہے تاندلے والا اور ڈجکوٹ کے وہ ہیروز جو کہ اپنے اپنے شہر میں کنٹریبیوشنز پیش کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم یہاں پر دعوت دیں گے، ان کو بلائیں گے اور ان کی کو اپریشیٹ کریں گے۔ تقریب میں مشہور پنجابی یوٹیوبر انجم سرویا نے بھی شرکت کی۔ تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی کا ایوارڈ حریم فاطمہ کو ملا، جبکہ صحافتی میدان میں مثبت اور نمایاں کارکردگی کا ایوارڈ سٹی پریس کلب سمندری نے اپنے نام کیا۔ اہلیہ سمندری نے شاندار پروگرام کے انعقاد پر منتظمین کو مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ پرائڈ آف سمندری کی انتظامیہ آئندہ بھی ایسے پروگرام کا انعقاد کر کے حوصلہ افزائی کرتی رہے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد آصف، ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی سمندری۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور ٹمبر مارکیٹ سے ناجائز تجاوزات عروج پر زون انتظامیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے لوگوں نے کیا کہا، جانتے ہیں نمائندے مہر طارق محمود سے۔ جی مہر طارق بتائیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں راوی زون کے علاقہ ٹمبر مارکیٹ میں، جہاں ہر بازار کے اندر جو ہے وہ جتنے شو روم بنے ہیں جوتیوں کے، شوز والی دکانوں نے اپنا اپنا مال باہر رکھ کے روڈ کو بند کر دیا ہوا ہے، اور جو ٹریفک ہے وہ بالکل جام ہو جاتی ہے، اور صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی ٹمبر مارکیٹ کے بازار ہیں یہ دکانداروں کی وجہ سے اکثر بند رہتے ہیں۔ تو ہم آپ کی بات کراتے ہیں اس علاقے کے لوگوں سے اور پوچھتے ہیں کہ یہ علاقہ جو ہے یہ دکانوں کے باہر مار رکھ کر کیوں بیچتے، ایسا کہ زون انتظامیہ جو ہے وہ ان کی گاڑی آتی ہے، وہ غریب لوگوں کے جو ہے سامان اٹھا لیتے ہیں، کسی کی ریڑھی اٹھاتے ہیں، کسی ہوٹل کے بینچ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ جو جوتیوں والی دکانیں ہیں ان کے جو مال باہر پڑے ہیں یا جو جنریٹر پڑے ہیں ان کو کوئی انتظامیہ نہیں چھیڑتی۔ اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ جو باہر نجائز تجاوزات ہے یہ کیسے ختم ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورے بازار میں انہوں نے اپنے اپنے مال باہر رکھے ہیں، ٹریفک بند رہتی ہے، یہاں انتظامیہ نہیں آتی؟ کوئی پوچھن دسن والا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی اپنی ہر بندے نو پئی، کوئی نہیں کسی کا سنتا۔ نہیں آپ یہ بتائیں کہ یہاں گاڑی انتظامیہ کی آتی ہے؟ نہیں کوئی نہیں آتے، کوئی انتظامیہ نہیں آ رہا۔ ویسے تو میرے علم میں آیا ہے کہ کافی ہوٹلوں سے یا کافی دکانوں سے آ کے لوگوں کے سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو یہ شوزوں کے جو جوتوں کے کارخانے ہیں ان کے آگے جو شو روم ہے ان کا مال کیوں نہیں اٹھاتے؟ بھائی یہ بتا دیندے نے، انہوں نے اس واسطے نہیں پوچھا جاتا نام۔ جی اچھا بھائی آپ یہ بتائیے کہ یہ نجائز تجاوزات کیسے ختم ہوگی؟ یہ ختم نہیں ہوگی جب تک عملہ درست نہیں ہوگا، جب تک عملہ درست نہیں ہوگا تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پکڑنا ہے، بس ہمارا سامان اٹھانا ہے۔ آپ کا کیا کیا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ ڈالے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، آتے ہیں باہر جو بھی پڑا ہے وہ اٹھا کے لے جانا ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں یہ ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے کوئی پرابلم ہے؟ پرابلم ہوتی ہے نا، ہمارے پاس گاہک بھی آتے ہیں، ادھر اور بھی کسٹمر آتے ہیں، کہیں آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو پرابلم ہوتی ہے۔ جی ان کا کہنا ہے کہ یہاں دن رات تقریباً جو ہے 24 گھنٹے کے لیے روڈ بند ہوتا ہے،
और जो शूज बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं इनके आगे शोरूम है, और शोरूम वाले जो हैं वो अपनी दुकानों से माल बाहर रखकर सेल करते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बंद रहती है। जी, कोटरी साइड के इलाके गरीबाबाद में सुई सदरन गैस कंपनी के एरिया मैनेजर कोटरी एजाज की नाअहली की वजह से 2 माह 20 दिनों से गैस की फराहमी मुअत्तल, जिससे गरीबाबाद के मकीन सख्त परेशान और सुई सदरन गैस कंपनी के खिलाफ गरीबाबाद मकीनों और पाकिस्तान नौजवान तहरीक के कारकुनों अब्दुल सत्तार लुखर, शहबाज मेमन और दीगर का एहतजाज। मजीद तफसीलात से आगाह करें साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के रिपोर्टर हुसैन बख्श नारेजो। कोटरी साइड के इलाके गरीबाबाद में यहाँ मुकम्मल 2 माह से गैस बंद है, जहाँ की फराहमी की वजह से आवाम सख्त परेशान है। जहाँ की गैस के बार बार आवाम जो है कंपनी तक गई है। आज इन्होंने गैस इंतजामिया को चेताव दिया है कि अगर 2-3 दिन के अंदर गैस बाहर नहीं की गई तो उसके खिलाफ एहतजाज किया जाए। और मजीद हमारे पास सियासी और उलमा के नाज़िक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलसल 2 महीने से लेकर SSGC वालों की नाअहली कहा जा सकता है इसको, कि गैस के पाइप में से पानी निकल रहा है। जहाँ पर गैस आना चाहिए, बिल तो वक्त पे पहुँच जाता है, टाइम पे पहुँच जाता है। 3 महीने बिल अदा ना करो तो हमें हमारे गैस को काटने, उसे ताला लगाने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन अफसोस 15 से 16 दरखास्तें हमारी आज भी SSGC के पास जमा है, लेकिन उसे सुनने के बजाय वो सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। पीछे मेरे एक खड्डा नज़र आ रहा होगा, सिर्फ वो खड्डा कल खोद के चले गए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अमली काम कोई भी नहीं हुआ। हम मुतालबा करते हैं SSGC जोनल ऑफिसर कोटड़ी और डिस्ट्रिक्ट जामशेरा के कि खुदारा इस गैस को फ़ौरन बहाल करके, सर्दियों का मौसम चल रहा है, लोग यहाँ पर बगैर गैस के बड़ी तकलीफ़ों को मुँह दे रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि अगर इस गैस को 2 से 3 दिन के अंदर नहीं किया गया तो हम जोनल ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे, और तब तक हमारी एहतजाजें जारी रहेंगी जब तक ये मसला हल नहीं होगा। सबसे पहले तो बड़े अफसोस की बात है, गैस इंतजामिया की नाअहली है। 80 दिन हो गए गरीबाबाद कॉलोनी में ये मसला चल रहा है। एक तो सर्दियों का मौसम शुरू होते ही गैस अचानक से प्रेशर ख़त्म हो जाता है, गैस ना होने के बराबर है। ऊपर से तकरीबन ये जो 80 दिन से मसला चल रहा है गरीबाबाद में, ये गैस का मसला है, गैस इंतजामिया हल नहीं कर रही। तो मुतालबा करते हैं गैस ऑफिस और जोनल मैनेजर से बराए मेहरबानी मसला हल किया जाए। दीगर सूरत में हमारा 2-3 दिन में अगर दिन में एहतजाज होगा गैस ऑफिस के सामने। अच्छा, आपका इसके बारे में क्या कहना है? जो इलाके के लोगों से इन्होंने गैस इंतजामिया ने खड्डे खुदवाने के लिए पैसे लिए हैं और फिर भी नाकाम है गैस की बहाल करने में। ये तो सबसे पहले इलाके मकीनों की नाअहली है। जो सरकारी काम है उसके तो पैसे देने नहीं होते हैं। जो भी कोई शख्स होगा जिसने पैसे लिए हैं सबसे, ये तो उसकी नाअहली है। इलाके मकीनों को पैसे नहीं देने चाहिए थे, ये सरकारी काम है, सरकार खुद करेगी। और अब प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं और आपको मजीद अपडेट देते हैं। कराची मुनीर के इलाका गुलशन हदीद में खत्म नबूवत फॉर्म कराची की जानिब से अजीमुल शान खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और उलमा कराम की भरपूर शिरकत। मजीद जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे नवाज सरगानी से। फोरम कराची की जानिब से ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली का प्रोग्राम कराची के इलाके गुलशन में मनाया जा रहा है। इस कन्वेंशन में पूरे पाकिस्तान के उलमाए कराम की शमूलियत जारी है। आइए अभी से जानते हैं कि यहाँ पे जो कन्वेंशन है उसके बारे में क्या कहना है। झूठे नबियों के जरिए इस दीन को बदला जाए, इस दीन को मसख किया जाए। वो जो अंग्रेज की गुलामी का इनकार कर रहे थे, हकीकी मानों में कालाबानी की सजाओं का सामना कर रहे थे, वो अक़लियत नहीं है, कादियानी इस्लाम की कॉपीराइट है कि वो ये फोरम जो मुख्तलिफ इलाकों में ये उलमा को आगाही मुसलमानों वाले देना चाहते हैं। वो अपने के कानून को पाकिस्तान का आइन का हिस्सा बने हुए इस साल 2024 में 50 साल मुकम्मल हुए हैं। तो 50 साल गोल्डन जुबली के सिलसिले में गुलशन हदीद के अंदर आज अक़ीदा ख़त्म नबूवत उलमा मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसका मकसद उलमा आइम्मा मसाजिद समेत दीगर शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल्स
जैसे टीचर्स हैं, वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, उनमें अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से अवेयरनेस देना है ताकि वो अपने मुतालिकीन को, अपने से वाबस्ता लोगों को ख़त्म नबूवत के मसले की ज़रूरत और अहमियत के मुतालिक आगाह करें। उसके बाद लोगों को मुतमईन करने का मलिका हमारे पास नहीं था, उनकी नज़ाकत को समझने की हाजत और ज़रूरत है, और ये समझना होगा और ये महसूस करना होगा कि हमारा बोलना कई मकामात पर लोगों के लिए तकलीफ का जरिया में इंटीरियर में 3 रोज़ा कोर्स, 2 रोज़ा कोर्स, 1 रोज़ा कोर्स, 300 कोर्सेस खत्म अनवान से अपना निसाब बनाया। उर्दू में अलहमदिल्ला उसका सिंधी ट्रांसलेट भी आ गया, इंग्लिश ट्रांसलेट भी आ गया, तो ये तमाम आगाही हुई। तो कराची का ये सिलसिले का हमारा तीसरा के चौथा कन्वेंशन है, क्योंकि कादियानियों को काफर करार दिया। इतना वक्त साल हो गए, तो 50 साल पूरे हो गए, तो उस 50 साल गोल्डन जुबली की तकरीबात में ये बुनियादी तौर पर जो है ना उस सिलसिले की ये खड़ी है। तो तकरीबन उलमा मशाइख आ रहे हैं। अच्छा, उसकी जो कानूनी पोजीशन है वो भी हमने लोगों के सामने वाज़ेह की है। आम आवाम को कम से कम ये बताया गया कि कादियानियों को हम काफर करार देते क्यों हैं, बुनियादी तौर पर उनका मसला क्या है। मसला उनका क्या है, इस मसले की हसासियत और उसकी अहमियत के पेश नज़र और सिंध भर में, कराची भर में, पंजाब की सतह पर ये कोर्सेस कराए गए, लोगों को आगाही दी। अक़ीदा ख़त्म नबूवत के वाले से हो चुकी ईमान का अक़ीदा है ये, और हर मुसलमान का ये अक़ीदा और इस्लाम की बुनियादी अक़ाइद में से एक है कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनके बाद न कोई नबी आएगा, न कोई रसूल आएगा। फिर जिन शुहदा ने, जिन असम्बली के मेंबरान ने, भुट्टो साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, उनके साथ हमारे बड़े बड़े उलमा अलमा अबू हसनात अहमद कादरी रहमतुल्लाह अलैह, शाह दुरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, और ये तमाम बाबाब ने जो असम्बली में इनको करादात काफर से 1999 बल्कि पाकिस्तान भर से उलमाए किराम शहर मुल्तान से साबिक वफाकी वज़ीर पीर सैयद हामिद सईद जामी शाह साहब तशरीफ लाए हैं, और इसी तरीके से पंजाब के एक शहर बहरा शरीफ से लालू बहरा शरीफ के शेख हदीस और तफसीर मुफ्ती शेर अली खान साहब तशरीफ लाए हैं। इसी तरीके से अंदरून सिंध से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के सूबे सिंध के अमीर पीर सैयद सखी सरदार शाह जिलानी साहब और नाज़िम आला हज़रत अल्लामा अकरम सईदी साहब की आज की इस महफिल में रौनक अफरोज़ है। और इसके साथ साथ शहर कराची के कई दीगर उलमा, चमकते दमकते सितारे भी आज के इस कन्वेंशन का हिस्सा। गिडाप टाउन यूनियन कमेटी पेपरी के मेन सिंधी गोट मार्केट सफाई सुथराई और सीवरेज के नाक़िस इंतजामात, माहाना लाखों फंड सफाई और सीवरेज के नाम पर खर्च करने का दावा, हालत फिर भी खराब। अहले इलाका के मोअज़्ज़ज़ शहरी समाजी रहनुमाओं यूनियन कमेटी पेपरी के मौजूदा हालत पर तशवीश का इजहार। वज़ीर बल्दियात सिंध मेयर कराची से गिडाप टाउन इंतजामिया और यूसी पेपरी के इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा, अवाम दोस्त चेयरमैन मुकर्रर की जाए। मज़ीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के रिपोर्टर अनवर हुसैन नारेजो से। जी नाज़रीन, इस टाइम हम दूसरी दिन पर मौजूद हैं। काफ़ी अर्से से सीवरेज का इशू चल रहा है। यहाँ तकरीबन ये पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाया जाता है। यहाँ की आवाम इंतहाई परेशान है सीवरेज के हाल से। अभी आपने लगी हुई उनके पैप उसके लगे हुए हैं, ये लगा रहे 150 उसको फ़ोन करके बताया जो आपने टेंडर किया है, किसी के ऊपर मेहरबानी की है, वो ये नहीं करवाते। अभी ये दूसरे टेंडर आया 3 करोड़ का, ये छोटे से 2 पैप डाल के अपना टेंडर पूरा करके चले जाते हैं। और हमें मेहरबानी इनसे जान छुड़ाई जाए। और यहाँ से हम कराची डिवीज़न से जाकर लाड़काना 2500 रुपया खर्च करके हम पीपल्स पार्टी को वोट कास्ट करते हैं। मैं पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी को सूरत हाल ॾिसो था पिया पिपरी जी शाहनवाज़ ॻोठ साम्हूं आहे। ही पिपरी जी कंडीशन आहे। ही पोयों सॼो सारो अवाम बीठो आहे। साम्हूं असांजे पोएं पासे को इमाम बारगाह। आवाम की आपने बातें सुनी, क्योंकि उनका कहना था ये सीवरेज के इशू के हिसाब से हज़ारों बीमारियाँ जन्म लेती हैं और मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इनका ये भी कहना था जितना भी यूसी का बजट है या टाउन का बजट है वो कहाँ यूटिलाइज़ करते हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि अगर ये यूटिलाइज़ करते हैं तो ये हमें नज़र आता। सीवरेज का काफ़ी अर्से से यही मसला चल रहा है। जी मीरपुर खास डिवीजन के डायरेक्टर शहजाद अहमद शेख और दीगर का प्रेस क्लब उमरकोट का दौरा, तरक्याती काम का जायजा लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एमलाल वाघानी से। जी बिल्कुल, अपनी नाज़रीन को बताते चले कि इंफॉर्मेशन मीरपुर खास डिवीजन के डायरेक्टर शहजाद अहमद शेख व दीगर का प्रेस क्लब उमरकोट का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। प्रेस क्लब उमरकोट का विजिट किया और
प्रेस क्लब हाल में एक सादा तकरीब को खिताब करते हुए इत्तलात व नशियात मीरपुर डिवीज़न के डायरेक्टर शहजाद अहमद मेमन ने खिताब करते हुए कहा है कि प्रेस क्लब उमरकोट के तमाम मसाइल तरजीह बुनियाद पर हल किए जाएंगे। उमरकोट के साफियों को जो भी मसाइल हैं जो मिलजुल कर बैठकर तरजीह बुनियाद पर हल किए जाएंगे। उमरकोट प्रेस क्लब के सालाना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध कायम कमेटी की मीटिंग में प्रेस क्लब उमरकोट की नुमाइंदगी देने पर लेटर अरसलान किए जाएंगे। इस मौके पर तकरीब को खिताब करते हुए चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी प्रेस क्लब उमरकोट रसूल भाई रहमदानी ने कहा कि हमें कायम कमेटी में मेंबर बनाया जाए। उमरकोट प्रेस क्लब में किसी और को दखल अंदाजी करने नहीं देंगे। उमरकोट प्रेस क्लब की मेहनती जफाकशी वर्किंग जर्नलिस्ट मसाइल को हुकूमत तक पहुंचाते हैं और माली माउंट को जो भी सिंध हुकूमत इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मदद करती है उन पर नज़रसानी करके बढ़ाया जाए और प्रेस क्लब उमरकोट को फंड फराहम किए जाएं। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब उमरकोट गुलाम मोहम्मद कुंबर, सरपरस्ते आला हाजी गुल हुसैन आरी सर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन उमरकोट GM भट्टी और उमरकोट प्रेस क्लब के अहदेदारान, मेंबरान और साफी मौजूद थे। जी समारोह असिस्टेंट कमिश्नर संजय कुमार तरकियो और टाउन अमले के साथ दूसरे दिन भी समारोह 2 उमरकोट मेन रोड पर गैर कानूनी तजावुज़ात, रोड पर मौजूद रेड़ी और छपरों के खिलाफ कार्रवाई जारी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एमलाल वाघानी से। जी बिल्कुल, अपनी नाज़रीन को बताते थे कि असिस्टेंट कमिश्नर समारोह संजय कुमार तुर्कियों की जानिब से कुछ दिन कबल लेटर समेत और दीगर वार्निंग देने के बावजूद उमरकोट टू समारोह टू मीरपुर खास रोड पर गैर कानूनी खड़े किए गए रेड़े, छपरे और दीगर गैर तजावीज़ात नहीं हटाने के खिलाफ दूसरे दिन भी अपने टीम के हमरा रोड पर मौजूद छपरे, रेड़ियां, रक्षा हटाकर सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि आप ही की वजह से यहाँ रोड और ट्रैफिक जाम होती है और ये आपकी वजह से रोज़मर्रा मामूल बना हुआ है, जिसकी वजह से तमाम परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसने उस वक्त मजीद उनका कहना था कि शहर को जल्द ही गैर कानूनी तजावीज़ात से साफ किया जाएगा और इस वक्त 3 से 4 दुकानदारों को भी सील किया गया। दूसरी जानब समारोह के पुराने बस स्टैंड को भी बहाल किया गया है। पुराने बस स्टैंड पर गैर कानूनी खड़े ठेले और छपरों को भी हटाकर गैर कानूनी खड़े ठेलों को भी हटा दिया गया और बस स्टैंड को साफ करके नए तर्ज में बहाल किया गया। वाज़ेह रहे कि ऐसी समारोह संजय कुमार तुर्कियो साहब की ने आदि समारोह के काम हो रहे हैं। जिस बस स्टैंड का काम 20 साल से नहीं हो रहा था, जिसको संजय कुमार तुर्कियो साहब ने साफ करवाया और उसका असल बहाल करवाया। उसके अलावा समारोह के काम जिस दिन से इन्होंने अपनी चार्ज संभाली है, समारोह के मुख्तलिफ इलाकों में एक्शन लेते हुए काम किए गए हैं। वहाँ की आवाम ने इन्हें अभी समारोह के मसीहा मानने लगे हैं, क्योंकि संजय कुमार एक संजीदा इंसान है और सब जितने भी गैर कानूनी काम है उनको एक्शन लेते हुए उनको ख़त्म किया जा रहा है और साफ सुथराई से लेके पानी और दीगर समारोह की जो भी काम है उनको करवाया जाए। जी खपरों में तरक्याती कामों ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। खपरों जामिया मस्जिद की मेन गली जो आए रोज पलटती रहती थी, जिसकी वजह से गली से गुजरने वाले राहगीर और नमाजी बहुत परेशान हुआ करते थे। गली में गंदे पानी की शिकायत कई दफ़ा सिटी चेयरमैन हाजी इम्तियाज़ हसन दर्स को दी, जिस पर सिटी चेयरमैन ने नोटिस लेते हुए गली में नाली और रोड दोनों को नए सिरे से बनाने का हुक्म दिया, जिसका काम जारी है। गली के दुकानदारों ने चेयरमैन खपरों का शुक्रिया अदा किया। जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्फ़कार अली से। इस वक्त हम मौजूद है जामा मस्जिद की मेन उस गली में, जो कि तकरीबन हर हफ्ते पलटती रहती थी
और ये नाली का यहाँ बहुत मसला था। जुमे वाले दिन ये नाली लाजमी पलटती थी, जिसकी शिकायत हमने बार बार हाजी इम्तियाज़ दराज साहब को दी, सिटी चेयरमैन को, जिसकी नोटिस लेते हुए हाजी साहब ने अभी हमारा नाली का मसला हल किया है, जो कि मेरा कैमरामैन दिखाएगा। नाली भी नई बन चुकी है और उसके साथ साथ ये रोड भी बन रहा है। सो इसलिए हम इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। और पूरे शहर में तकरीबन इतना काम नहीं हुआ जो कि इन दिनों चल रहा है। हर वार्ड के, सिटी के हर वार्ड में तरक्याती काम चल रहे हैं। और हमारे जामा मस्जिद की मेन का पानी बहुत था, तो जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। अब इन्होंने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया, रोड भी ऊंचा कर दिया और नाली भी सेट कर दी। जी भाईजान, आप क्या कहेंगे? ये जो हाजी इम्तियाज़ साहब की बड़ी मेहरबानी है। बहुत तकलीफों में थे, रोज़ पानी बाहर आता था और हम अभी बहुत खुश हैं हाजी साहब की मेहरबानी जो ये रोड वोड बना। और बहुत तकलीफ में थे, डेली इधर पानी बाहर आ जाता था हाजी साहब की। अच्छा, इसके अलावा शहर में जो काम चल रहा है तरक्याती मुख्तलिफ वार्डों में, उनके मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? काफ़ी वार्डों में काम चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। हाजी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, ये थे यहाँ के दुकानदार जो इस गली के जहाँ इनकी दुकानें हैं, उनकी राय थी। और तकरीबन शहर के हर आवाम, शहर का हर मोहल्ले में जो काम हो रहा है, हर वार्ड में काम हो रहा है, लोग बहुत मुतमईन हैं इस काम से। और सब ने हाजी साहब का शुक्रिया अदा किया। और यहाँ की जो मेन गली है जो कि तकरीबन हर हफ्ते पलटती थी, इसका भी काम चल रहा है। सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और मोहम्मद अली मलकानी की मीडिया से गुफ्तगू, तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर कराची फरहान हाशमी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह मोहम्मद अली मलकानी की मीडिया से गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान की पहली डिजिटल एग्रीकल्चर मरदमशुमारी का आज से आगाज़ किया गया है। एग्रीकल्चर सेंसस 10 फरवरी तक जारी रहेगा। सिंध के तमाम अजला में ज़राअत, लाइफ स्टॉक की मरदमशुमारी की जाएगी। एग्रीकल्चर सेंसस से इस शोबे में वसत इम्कानात वसाइल का दुरुस्त अंदाज़ा हो सकेगा। KPK में बहुत ज़्यादा भेड़ें हैं, कुछ भेड़िए भी बहुत ज़्यादा हैं। झूठा बयान बनाया गया, हम कोई ग़ुलाम हैं। नाज़िर हुसैन शाह की गुफ्तगू। अब इनके जलसों में अमरीका के झंडे लहराए जा रहे हैं। 9 मई के सज़ा याफ्ता लोगों के बारे में कह रहे हैं हमारे लोग नहीं हैं। जब इन लोगों का ताल्लुक PTI से नहीं तो फिर क्यों शोर मचा रहे हैं? हम पारा चैनल के लोगों के साथ हैं। रेड क्रॉस के ताउन से वहाँ इमदाद भेजी जा रही हैं। KP हुकूमत पारा चैनल के मसले पर काम नहीं कर रही। सिंध में भी पुरअमन एहतजाज किया जा रहा है। धरनों की वजह से अवाम परेशान है, एम्बुलेंस फंसी हुई है। कराची के अवाम से माजरत ख्वाहें कि उनको तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत शहर का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं देगी। मुजाहिरीन जहाँ चाहें बैठ सकते हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलात का एहसास करें। उलमा ने कहा कुछ लोग हमारी बात नहीं मान रहे, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। नासिर हुसैन शाह। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से विंटर कोचिंग कैंप का शानदार इनकाद किया गया। मेहमान हुसूसी डिप्टी डायरेक्टर यूथ अफेयर्स सैयद हबीबुल्लाह ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस्माइल शाह के मुताबिक 5 खेलों में 150 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ खेलों का फ्री विंटर कोचिंग कैंप के एहतमामी तकरीब 2024 का सिंध यूथ क्लब में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ईस्ट इस्माइल शाह की जानिब से कामयाब इनकाद हुआ। खबर शामिल करते हैं लाहौर मीनार पाकिस्तान से। PHA की पार्किंग स्टैंड वाले मोटर बाइक कार वालों से किस रेट पर पर्ची फीस चार्ज करते हैं? पार्किंग स्टैंड वाले सैरो तफरी के लिए आने वाले लोगों के साथ कैसा रवैया रखे हुए हैं? साउथ एशिया ग्लोबल के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए मजीद तफसीलात जानते हैं। जी नदीम भट्टी, बताइएगा आपके पास इस हवाले से क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान पार्किंग स्टैंड पे और हमारे साथ भाई मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्ची मोटरसाइकिल की कितने की ले रहे हैं और गाड़ी की कितने की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम खुरम भट्टी नाम। खुरम भाई, ये बताएं कि आप बाइक की कितनी पर्ची ले रहे हैं? हम बाइक की ले रहे हैं 30 रुपए और गाड़ी की? गाड़ी की 50 रुपए। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि लोगों का ये भी कहना है कि मोटरसाइकिल की भी पर्ची 50 रुपए ले लेते हैं? नहीं, हम 30 रुपए लेते हैं। और पाकिस्तान से लोग आते हैं कई जगहों से, कोई अपना हेलमेट वगैरह, बैग वगैरह वो वैसे ही हम रख लेते हैं। नहीं, हमने ये भी सुना कि हेलमेट के भी 50 रुपए लेते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पोस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं। यानी कि ये जो पाकिस्तान के आए हुए लोग मेहमान होते हैं तो आप उनकी केयर करते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, हम उनकी केयर करते हैं, उनको सहूलत देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम उनको उनके बैग वगैरह होते हैं वो रख लेते हैं, उनको ये सहूलत है उसके लिए। और आप मुझे ये बताएं कि लोगों का आपके साथ बर्ताव कैसा है? लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा है हमारे साथ।
ठीक है, हम भी उनके साथ बिल्कुल सही चलते हैं, तो बीच में लोग कोई मारे भी होते हैं जिनसे हम 30 रुपए नहीं दे सकते, वो तो हम उनको वैसे दे क्या उन्हें माफी है? माफी है। ये बहुत अच्छी बात है। ये जैसे कि खुरम भट्टी साहब का कहना था कि जिनके पास अगर सम टाइम होता है कि पैसे नहीं भी होते ना, तो उनको माफी भी है। तो अदरवाइज 30 रुपए पर्ची है मोटरसाइकिल की और 50 रुपए पर्ची है गाड़ी की। जी हमारे साथ मौजूद है इमरान भाई, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। इमरान भाई, आप हमें ये बताएं कि आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं और अपनी ये जो भी लोग आते हैं उनकी गाड़ियों की हिफाजत करते हैं, आपको किन मुश्किलात का सामना है? मुश्किलात का तो कोई सामना नहीं है, बस यही है कि इधर जो भी बाइक खड़ी करके जाता है वो हमारी कस्टडी में होती है, हम उसकी सेफ्टी के लिए बैठे हुए हैं और फी वो 30 रुपए लेते हैं चार्जिंग, जो हमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। और अगर कोई हेलमेट वगैरह रखे तो वो हम अपने सेफ्टी में रखते हैं, उनके हम कोई चार्जेस नहीं करते। तो बाकी दूर दराज से मेहमान आते हैं तो वो हमें लाइक भी करते हैं, उनके बिस्तर वगैरह होता है जो गांव लेवल से आते हैं, सामान होता है वो हम अपनी हिफाजत में रखते हैं। बाकी उनकी जो गाड़ियों की है वो सेफ्टी करते हैं, जो हमें गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ है कि आपने इतने मतलब वो इनसे वसूल करने हैं। 30 रुपए बाइक के है, 50 रुपए कार के है, 100 रुपए कोस्टर के है, वही हम उनसे वसूल करते हैं और वो बड़े हैप्पी होके हमें पैसे भी दे के जाते हैं और बड़े हैप्पी होके वापस जाते हैं। ये PHA की पार्किंग है? जी बिल्कुल PHA की पार्किंग है जी। जैसा तो इमरान भाई का ये कहना था कि जो भी कोई आते हैं बाइक वाले उनसे हम 30 रुपए पर्ची के चार्ज करते हैं और हेलमेट के हम एक्स्ट्रा चार्जेस कोई नहीं करते, ना हम डबल पैसे लेते हैं, और जो भी अपनी बाइक खड़ी करते हैं उनकी हिफाजत हम करते हैं। जी। और अब प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं और आपको मजीद अपडेट देते हैं। शहर इकबाल से खबर शामिल करते हैं और आपको अपडेट देते हैं। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करने में 2 मुलजमान मोहम्मद शराज और राय मुस्तनसर गिरफ्तार। सियालकोट FIA इमिग्रेशन की एयरपोर्ट पर कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क सफ़र करने में मुलविस 2 मुलजमान गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद शराज और राय मुस्तनसर शामिल। मुलजमान QR 626 फ्लाइट नंबर के जरिए सियालकोट एयरपोर्ट पहुंचे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजम राय मुस्तनसर उम्रा वीज़ा पर सऊदी अरब गया। मुलजम ने जाली दस्तावेज़ात का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब से साउथ अफ्रीका जाने की कोशिश की। बाज़ साउथ अफ्रीकी हुकाम ने मुलजम को जाली वीज़े की बुनियाद पर डिपोर्ट कर दिया, जबकि मुलजम मोहम्मद शराज को टेम्पर्ड पासपोर्ट की वजह से डिपोर्ट किया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजम ने कतर ट्रांजिट के दौरान पासपोर्ट का सफ़र टेम्पर्ड किया। मुलजिम इससे कबल भी जालसाजी से साउथ अफ्रीका जाने की कोशिश कर चुका है। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल गुजरावाला के हवाले कर दिया गया। खुजरा शाह मुकीम के नवाह रहनाला होर्द में वज़ीर आला पंजाब की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद। करप्शन के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया की बड़ी कार्रवाई। ज़िला इंतज़ामिया का सब इंजीनियर इब्रार अहमद के खिलाफ करप्शन की खबरों पर सख्त नोटिस। मुतज़क्करा सब इंजीनियर पर वाटर डिस्पोजल स्टेशन हाउसिंग स्कीम से टफ टाइल्स उखाड़ कर अपने घर लगाने का इल्ज़ाम था। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी चौधरी ज़ियाउल्लाह की तहकीक में जुर्म साबित। ईंटों की चोरी साबित होने पर सब इंजीनियर म्यूनसिपल कमेटी इब्रार अहमद के खिलाफ मुकदमा का अंदराज करवा दिया गया। सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सब इंजीनियर म्यूनसिपल कमेटी इब्रार अहमद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। सब इंजीनियर म्यूनसिपल कमेटी इब्रार अहमद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी ज़ियाउल्लाह करप्ट अनासिर को सरकारी इदारों में लूट मार की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर करप्शन में मुलव्वस अफराद को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खैरपुर चदर बरादरी इंसाफ ना मिलने के खिलाफ एहतजाज जारी रखे हुए हैं। हमारे नौजवान के कातिल गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। पुलिस मुलजमान की पुष्ट पनाही कर रही है। मजीद खैरपुर से नुमाइंदा सदूर लशारी से जानते हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं खुर्शीद कॉलोनी में और यहाँ पर जो है चद्दड़ बरादरी जो है इस वक्त सरापा एहतजाज बनी हुई है। और मैं आपको बताता चलूँ कुछ अरसा रोज़ कबल पहले जो है एक पुलिस एहलकार और उनके साथियों की फायरिंग से जो है 5 अफराद ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से एक जो है कामरान चद्दड़ जो है वो बेचारा ज़ख्मों के ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। आज उसके जो है तीजे की रस्में भी अदा की जा रही हैं और उसके जो वर्सा हैं इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी भाई। सर, हमारा मुतालबा यही है SSP खैरपुर, IG सिंध, DIG सिंध, सदर आसफ अली जरदारी, सैयद मुराद अली शाह
उनको हमारी ये अपील है, सुप्रीम कोर्ट सैयद नफीसा शाह, साईं कैमली शाह, नवाब वसाण, मंजूर वसाण, उनको हमारी ये अपील है, ये दहशतगर्द आके हमारे घर पे फायरिंग करके हमारा एक नौजवान शहीद हो गया है 9th क्लास का, और छोटे पहले क्लास के बच्चे 5 बंदे जख्मी हैं, वो सीरियस हैं। अभी भी हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। हमारा एसपी खैरपुर से ये अपील है, उनको सिंध सेक्रेटरी में कोई सुहाग बिरादरी का बैठा है, वो हिमायत कर रहा है, वो उसका साला है, उसकी बहन के साथ उसकी शादी है, वो अपने उसकी बहनिया की हिमायत कर रहा है कि चोरी करे। बेनज़ीर बस्ती के 40 ट्रांसफार्मर उसने उतरवा रहे थे, वो बहुत हर अच्छा, इसमें से ये बताएं कि जो असल जवाबदार हैं उनमें से कितने जो है मुलजमान गिरफ्तार हुए हैं? पुलिस की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? बस 3 जवाबदार गिरफ्तार हुए हैं और कोई भी नहीं हुआ है। खादिम सुहाग, तालिब, मीर खान सुहाग, अली खान सुहाग और वाजिद, ये अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी एसएसपी खैरपुर आईजी सिंध से आप क्या मुतालबा करते हैं? हम ये मुतालबा करते हैं जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, वो हमारे खिलाफ इंसाफ किया जाए, वो हमारे खिलाफ हमारे ऊपर केस दाखिल करना हमारे को बोलता है तो एफआईआर से हाथ उठाओ। जी नाजरीन, यहाँ पर जो एहतजाजी हैं उनकी बात आपने सुनी। उनका ये कहना है कि ऐसे मुलजमान के खिलाफ फिलफौर जो है कार्रवाई की जाए और उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बना जाए ताकि ये मजीद इश्तियाल अंगेज़ी यहाँ पर ना फैले। इन्होंने एसएसपी खैरपुर से यही मुतालबा किया है। जी खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। ब्यूरो चीफ जाज़ेब अली कारतियार के मुताबिक तालीमी बोर्ड हैदराबाद की जानिब से नए साल के आगाज़ पर तलबा के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा बोर्ड ऑफिस हैदराबाद में 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया, जिसके ज़रिए तलबा अपने सर्टिफिकेट्स बआसानी कम से कम वक्त में हासिल कर सकेंगे। हैदराबाद तालीमी बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद अली बरोही ने बताया कि तालीमी बोर्ड हैदराबाद की जानिब से साल 9 के आगाज़ पर तलबा के लिए एक बेहतरीन इकदाम है। चेयरमैन बोर्ड ऑफिस हैदराबाद की सरबराही में बोर्ड ऑफिस में 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है। 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए तलबा और तालबात अपनी मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट्स और दीगर तमाम सर्टिफिकेट्स बआसानी कम से कम वक्त में हासिल कर सकते हैं और बैंक चालान के लिए भी लंबी कतारों से बच सकते हैं। बोर्ड ऑफिस हैदराबाद के अफसरान का कहना है कि इस बेहतरीन इकदाम के ज़रिए एजेंट माफिया से भी तलबा और तालबात की जान छूट जाएगी। और अब रुख करते हैं चिन्योट की जानिब, जहां मौसम सरमा की शिद्दत के साथ ही गैस की बंदिश में इजाफा हो गया। गैस की बंदिश की वजह से लकड़ी की कीमतों में दुगना इजाफा। 400 रुपये मन बिकने वाली लकड़ी 1400 रुपये में फरोख्त होने लगी। शहरियों का हुकूमत से गैस की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक नवाज से। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, मौसम सरमा की शिद्दत के साथ जो है गैस की बंदिश का में जो है इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को खाने पकाने में जो है दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। जबकि शहरियों ने खाने पकाने के लिए जो है लकड़ का इस्तेमाल करने के लिए लकड़ आरे का जो है वो रुख कर लिया, जहाँ पे शहरियों को जो है लकड़ की कीमतों में दोगुना जो है इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ भी शहरी मौजूद हैं, इस जनते को उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी सर, लकड़ की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? जी, हम यही कहेंगे कि मौसम गर्मा में इनका रेट था 500 से 600 रुपये मन था, अभी जो बढ़कर 1200 से 1400 रुपये हो गया है। तो हमें अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है तो और गैस अभी आती नहीं है, बंद होगी। तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि वो गैस की फराहमी करें। अगर वो गैस की फराहमी करेंगे तो हम लकड़ी ना खरीदेंगे और जो अपनी घर की ज़रूरियात है उसको गैस पे पूरा कर सकेंगे। तो हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि वो गैस की फराहमी करें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना है कि लकड़ की कीमतों में जो है वो दुगना इजाफा कर दिया गया, जिससे जो शहरी को परेशानी का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर, लकड़ की कीमतों के हवाले से क्या कहेंगे? जिस तरह आप जानते हैं कि मुल्क में सर्दी जो है उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से जो लकड़ है इसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और गैस जो है वो उसकी फराहमी जो है वो हो नहीं रही, जिसकी वजह से मुल्क में गैस की जो शदीद किल्लत है उसका सामना है और जिसकी वजह से जो हम आवाम है हमको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि गैस का जो बहरान है उसको ख़त्म किया जाए और गैस की फराहमी जो है आवाम के लिए यकीनी बनाई जाए।
जी, जैसा कि हमने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि गैस की बंदिश की वजह से जो है वो हमें लकड़ की जो है खरीदनी पड़ी है, जबकि लकड़ की कीमतों में जो दुगना इजाफा कर दिया गया, जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील किया कि गैस की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए ताकि हम इस महंगी लकड़ खरीदने से जो है वो बच सके। जी, हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां अल्लाह और रसूल कुरान और हदीस पंजतन पाक का पैगाम फैलाने, लोगों को मुशर्रब इस्लाम करने, तलबा को आलिम बनाने वाले बानी मस्जिद अबुल फजल अल अब्बास मौला अली कदम सैयदुल उलमा रूहानी शख्सियत अल्लामा समर हसन जैदी मौलाना मोहम्मद अब्बास की खिदमात हमेशा याद रहेंगी। बरसी मजलिस तरहीम जामिया वाया मुशारे उलूम लतीफ़ाबाद से खुजत इस्लाम मौलाना सैयद नाजिर अब्बास नकवी, कराची एडिशनल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान ने खिताब करते हुए उन्होंने अल्लामा समर हसन जैदी मौलाना मोहम्मद अब्बास की खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। साहबजादे इमाम मौला सैयद हैदर अब्बास जैदी की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शोहदाए करबला हुसैन को याद रखे। मजलिस अज़ा में नज़ामत के फ़राइज़ सैयद मुस्तहसन जैदी ने अदा किए, जबकि इस मौके पर उलमाए कराम मौलाना रज़ा मोहम्मद सईदी, मौलाना इरफान अली इरफानी, मौलाना रोशन अली ताहरी, इलामा जबरान सलीम खैदर जैदी, मौलाना वसीम खैदर जैदी, प्रोफेसर मुजफ्फर हुसैन जैदी, मौलाना रहमत अली, शिया उलमा कौंसल सैयद मुअज़्ज़म शाह जहानिया, मोहम्मद अहमद जाफरी, रज़ा ईरानी और दीगर मोमिनीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिर में सैयद मुर्तज़ा मुजतबा मेहदी मुस्तफ़ा जैदी ने नज़रो न्याज पेश की। पारा चिनार के हवाले से साउथ एशिया ग्लोबल टीवी हैदराबाद के ब्यूरो चीफ जाज़िब अली कारतियार से गुफ्तगू करते हुए मौलाना सैयद नाजिर अब्बास नकवी, कराची एडिशनल सेक्रेटरी शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान और दीगर का क्या कहना है, देखें इनकी ज़बानी। और जितना ये पारा चुनार का मसला डिले होता जा रहा है, उतना ही पारा चुनार के मसाइल जो है वो गमगीर होते जा रहे हैं। हद तक इंसानी अलमिया जन्म लेना शुरू हो गया। वहाँ पर आपने देखा दहशतगर्दी की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। उस दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना चाहिए था, क्रैक डाउन करना चाहिए था, लेकिन उनकी सुसरवी, गफलत और उनकी तरजीहात में था, जिसकी वजह से आज ये सूरत हाल इतनी हो गई है कि वहाँ पर अद्वियात ना होने की वजह से 50-55 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं, महसूर हैं, खाने पीने की अशिया खुर्दो नोश नहीं है। मुआहदे के अंदर भी रोज़ाना आहिस्ता आहिस्ता अभी हो रहा है, कल हो रहा है। लिहाजा मैं हुकूमत से कहता हूँ कि सारी चीज़ों को छोड़कर उनकी तरजीहात सबसे पहले ये होनी चाहिए कि पारा चुनार के मसले को हल किया जाए। उसमें शिया सुन्नी दोनों मुतासिर हैं, मैं कोई शिया सुन्नी की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, वो अलग बात है कि शिया इसमें ज़्यादा मुसारे लेकिन मुतासिर, लेकिन शिया के साथ सुन्नी भी मुतासिर हैं, उनके लिए भी मुश्किलात हैं, उनका भी रास्ता बंद पड़ा है, उनके लोग भी परेशानी का शिकार हैं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी अवामी मसाइल को हल करना तरजीहाती बुनियादों पर। मैं समझता हूँ कि अगर इसको संजीदगी से लिया जाए मसले को तो ये हल होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ अगर नहीं हुआ तो आप सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की देख रहे हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है। इससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हो रहा है, पाकिस्तान का वक़ार मजरूह हो रहा है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वैसे ही पाकिस्तान बड़ी मुश्किलात में शिकार है, मुश्किलात का, परेशानियों में मुब्तला पाकिस्तान, माशी सूरत हाल है, मुश्किलात हैं, दबाव है इंटरनेशनल। लिहाजा मुझे चाहिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए तरजीहाती बुनियाद पे पारा चुनार के मसले को हल कर कर मुस्तकिल बुनियादों पे हल किया जाए ताकि रिलीफ मिले आवाम को और ये पाकिस्तान के अंदर जो सब फिज़ा है ये ख़त्म हो सके। देखिए, पाकिस्तान में पारा चुनार में दुनिया में तमाम मकामात पर जिस तरह लोग आबाद हैं, इस तरीके से पाकिस्तान से बनने से पहले ही पारा चुनार में मोमिनीन कसीर तादाद में अहले तशरीफ़ आबाद हैं। वहाँ पर जो इस वक्त सूरत हाल है वो इतनी संगीन है कि जिसको बयान करना एक मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जंग, ये लड़ाई किसी एक फ़िरक़े की नहीं है। ये इमाम आली मकाम ने जो दर्ज दिया था वो इंसानियत का दिया था। आप ये बताइए कि अगर किसी इंसानियत का कत्ल है तो कुरान कहता है कि वो पूरी इंसानी कत्ल, एक इंसान के कत्ल को पूरी इंसान के कत्ल कहा गया है। लेकिन वहाँ पर देखें कि आप तकरीबन 150-200 अफराद को उतार के गाड़ियों से शनाख्ती कार्ड देख के मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है और हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। सूबाई हुकूमत कहती है मरकज़ी हुकूमत का काम है, मरकज़ी हुकूमत कहती है सूबाई हुकूमत का काम है। मुतालबा क्या करेंगे? हमारा मुतालबा ये है कि वहाँ पे फौरी तौर पर जो है ये जो लड़ाई हो रही है या मारकूट हो रही है ख़त्म किया जाए और लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। ज़िम्न में ये कहना चाहता हूँ कि पारा चनार तकरीबन 75 या 72 दिनों से जो है बिल्कुल ज़मीनी उसका रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है
یہ ایک ظلم ہے. وہاں پہ انسان رہتے ہیں, بچے خواتین رہتے ہیں, ان کی غذا کی قلت, دوائیوں کی قلت وہاں پہ بہت زیادہ پیدا ہو گئی ہے. متعدد بار حکومت کو اس طرح متوجہ کرانے کے بعد جب انہوں نے توجہ نہیں کی تو ملک گیر احتجاج کی طرف ہماری تنظیمیں گئی ہیں, اور ہم یہی مطالبہ رکھتے ہیں اور کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ ان کے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے اور وہاں پہ جو راستہ بند ہے 72 دنوں سے وہ راستہ کھولا جائے تاکہ غذائی قلت وہاں جو پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے, اور جو لوگ اس راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نمٹا جائے, اور جو انسانیت کے دشمن ہیں, بے دردی سے انسانیت کو ذبح کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ہماری لا انفورسز ایجنسیز نمٹیں. اور ہم امید کرتے ہیں اپنی لا انفورسز ایجنسیز کے ساتھ, حکومت کے ساتھ کو اس کا احسن طریقے سے حل کریں گے, اور اگر یہ زیادہ بڑھتا ہے تو یہ ملک گیر احتجاج میں تبدیل ہو چکا ہے. جلد سے جلد حکومت کو چاہیے اس معاملے کو حل کریں تاکہ وہاں پہ امن ہو سکے, محبت و پیار بڑھ سکے. بس خبر شامل کرتے ہیں کسوال سے, جہاں انجمن تاجران فیصلہ کمیٹی کا اجلاس, نئی ووٹر لسٹ بنانے کا فیصلہ. انجمن تاجران فیصلہ کمیٹی کسوال کا اجلاس زیر صدارت چیئرمین فیصلہ کمیٹی رانا محمد سجاد بٹی منعقد ہوا. اجلاس میں اراکین فیصلہ کمیٹی اور اراکین الیکشن کمیشن کمیٹی نے شرکت کی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فی شٹر فی ووٹ کے فارمولے کے تحت ووٹر لسٹ مکمل کی جائے. ووٹر کا دکاندار ہونا لازمی ہوگا. الیکشن 2025 کا عمل جلد از جلد کرانے پر بھی اتفاق کیا گیا. پروگرام میرا پاکستان میں جانی آپ نے ملک بھر کے اہم اجلاس سے اہم خبریں. پروگرام میرا پاکستان اور اس کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.